Okay, so we'll start from verse first canto, 7th chapter, 48 verse. यह यैकोपितं ब्रह्मकुलं राजन्यैरजितात्मभिः तत्कुलं प्रदहत्याशु सानुबन्धं शुचार्पितम्. Translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. If the kingly administrative order, being unrestricted in sense control, offends the Brahmana order and enrages them, then the fire of that rage burns up the whole body of the royal family and brings grief upon them all. Purport. The Brahmana order of society or the spiritually advanced caste or community and the members of such highly elevated families were always held in great esteem by the other subordinate castes, namely the administrative kingly order, the mercantile order, and the laborers. So we have seen in the episode, if you remember, Prabhuji had taken class on Vena's chapter, where Vena was very cruel and he was very respectful of Brahmanas, and he was doing lot of atrocious activities on the subordinates. So finally, Brahmanas, they chanted mantras and killed him by chanting of the mantras. So basically, Brahmanas are considered more powerful. Those who are real Brahmanas. Real Brahmanas in the sense those who have the Brahma Tej, you can say. So they practice austerities and they recite mantras and they do a lot of puja and everything. So they have Brahminical power. Like Shringi had cursed Parikshit Maharaj, which he did wrongly. तो वेणा के केस में जो ब्राह्मणों ने किया वो सही किया, और जब तक कलयुग स्टार्ट होने वाला था उस समय ब्राह्मण कास्ट जो है वो करप्ट होने लगी, जैसे श्रृंगी ने परीक्षित महाराज को कर्ज किया था, शाप दिया था। तो वो भी उसके पास ब्रह्म तेज था, तो ब्राह्मण कास्ट के पास तेज रहता है, जो वास्तव में उस समय वैदिक टाइम्स में होता था। ऐसा अभी पॉसिबल नहीं है। आज के समाज में ब्राह्मण के पास कोई तेज नहीं है, और जो ऐसे ऐसे ब्राह्मण हैं जो कहने के लिए, नाम के लिए ब्राह्मण हैं, जो मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के अंदर ब्रह्म तेज तो क्या किसी प्रकार की कोई शक्ति नहीं है। तो ये सब बेकार की बातें हैं अभी। तो लेकिन वैदिक काल में ऐसा ही था। तो यहाँ पर द्रौपदी अर्जुन को समझा रही है कि एज अ क्षत्रिय हमें ब्राह्मणों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। यस, ओके। 7.40 ने कोई पढ़ना चाहेगा? सूत उवाच धर्मं नारायणं सकाउनं नित्य अल्पं समं महत् राजधर्म सुतो राजः पर्यन्दत वाचो दिग्गजः. Translation. Suta Goswami said, O Brahman king, Yudhishthira fully supported the statements of Queen, which are accordance with the principle of the religion and were justified, glorious, full of mercy and equity, and without duplicity. Purport. Maharaj Yudhishthira, who was the son of Dharmaraj, or Dharmaraj, fully supported the words of Queen Draupadi in asking Arjuna to release Ashwatthama. One should not tolerate the humiliation of a member of the great family. Arjuna and his family were indebted to the family Dronacharya because of Arjuna's learning of the military science from him. If he intergraduate were shown to such benevolent family, it would not be at all justified from moral standpoint. The wife of Dronacharya, who was the half body of the great soul, must be treated with the compassion, and she should not be put
into the grief because of her son's death. That is the compassion. Such statements by Draupadi are without duplicity because action should be taken with fully knowledge. The feeling of equality was there because Draupadi spoke out of her personal experience. A barren woman cannot understand the grief of mother. Draupadi was herself a mother, and therefore her calculation of the depth of creepy grief was quite to the point. And it was glorious because she wanted to show proper respect to her family. तो यहाँ पर बेसिकली युधिष्ठिर महाराज भी अभी सपोर्ट कर रहे हैं द्रौपदी द्रौपदी महारानी को, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज स्वयं धर्मराज है, यमराज है, उनके ही अवतार है, उनके ही एक्सपेंशन है। तो उन्होंने, जो द्रौपदी ने कहा कि ब्राह्मण कैस्ट जो है उसकी रक्षा करनी चाहिए, तो ये सत्य है और उस बात की वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी दो पक्ष हो गए हैं। एक पक्ष है अर्जुन और भीम, और वहां पे कृष्ण भी है, और वो कह रहे हैं कि हाँ इसको सजा मिलनी चाहिए। और दूसरा पक्ष हो गया है युधिष्ठिर महाराज और द्रौपदी का, जो ये कह रहे हैं कि हमें कंपैशन दिखाना चाहिए, करुणा दिखानी चाहिए, उनको नहीं मारना चाहिए। और उसके बहुत सारे कारण द्रौपदी ने दिए हैं, द्रौपदी ने भी बहुत सारे कारण दिए हैं, और युधिष्ठिर महाराज ने भी उनको सपोर्ट किया है। तो इनमें से अनेक कारण जो कल हमने गिने थे, वही कारण यहाँ पर लिखे हुए हैं। कि जैसा एक जो बांझ स्त्री है जिसके कोई बच्चा नहीं है, वो नहीं समझ सकती कि जो माता है कोई, उसका क्या दर्द होता है अगर उसका बच्चा मर जाता है। तो लेकिन द्रौपदी स्वयं माता है, तो उनको समझ में आ रहा है कि कृपि को कितना कष्ट होगा। तो ये एक वैष्णव की, जो वैष्णव का सबसे बड़ा गुण है करुणा। वैष्णव जैसे ही व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता रहता है, उसके मन में करुणा और भी ज्यादा बढ़ती जाती है। तो अगर कोई एक पैरामीटर आपको चेक करना है कि मेरा एडवांसमेंट कितना हुआ है, तो आप देखिए आपके हृदय से कितनी हार्ड हार्टेडनेस जा रही, कितना आपको लोगों का दुख देखकर दुख होता है। अगर वो करुणा धीरे धीरे जागृत हो रही है, क्योंकि करुणा के कारण ही, करुणा एक बहुत बड़ा कारण है जिसके लिए भक्त जाकर प्रचार कार्य करता है, क्योंकि वह देखता है कि संसार में लोग कितना कष्ट उठा रहे हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कष्ट क्यों हो रहा है उनको, तो वो उनको समझाता है शास्त्रों के अनुसार कि किस कारण से हमें ये कष्ट हो रहा है। तो करुणा का मेन रीजन है करुणा, करुणा के कारण ही ये सब होता है। तो करुणा एक बहुत बड़ा वैष्णव का गुण है, और इसका ही यहाँ पर बखान किया गया है, यहाँ पर इसका गुणगान किया गया है। लेकिन दूसरा पक्ष धर्म का भी है, और धर्म जो है ये कहता है कि जिसने कोई करुणा नहीं दिखाई, जिसने बच्चों के ऊपर, सोते हुए बच्चों पर करुणा नहीं दिखाई, उसको करुणा क्यों दिखाना है। तो इसमें आगे देखते हैं कि क्या होता है। यस, क्या कोई और पढ़ना चाहेगा? Related. नकुलो सदेवश्च जुजुधानु धनञ्जय भगवान् देवकीपुत्र जे चान्यजाश्च जोषितः. Nakul and Sahadev, the younger brother of the king, and also Satyaki, Arjuna, the personality of Godhead, Lord Sri Krishna, son of Devaki, and the ladies, the others, all unanimously agreed with the king. तो यहाँ पर भी बता रहे हैं कि जो राजा ने, यानी युधिष्ठिर महाराज ने जो बात की कि हाँ ये धर्म के अनुसार, जो उन्होंने पिछले पिछले उसमें बात की कि महारानी द्रौपदी के शब्दों को उन्होंने सपोर्ट किया, क्योंकि वो धर्म के अनुसार ही थे। दोनों ही चीजें धर्म के अनुसार है। एक एक अपराधी को सजा देना भी धर्म के अनुसार है, और किसी ब्राह्मण की हत्या ना करना, करुणा दिखाना, ये सब भी धर्म के अनुसार है। और यहाँ पर फिर सभी लोगों ने इस बात को कहा, हाँ ये सही बात है। सात्यकी, मतलब नकुल, सहदेव, सात्यकी, अर्जुन, भगवान कृष्ण, और जो कि देवकी के पुत्र कहे गए हैं, और सभी स्त्रियों ने, जो भी वहां था, मतलब बड़ा बड़ा पूरा पूरा जमावड़ा था वहां, और सभी लोगों ने एक साथ उसको हाँ कहा। यस, नेक्स्ट समबड़ी। तत्राहामर्षितो भीमस्तस्य श्रेयान् वधः स्मृतः
न भर्तुर्नात्मनाश्चैथ चार्थे योहनम सुक्तान शिशुना वृथा. Translation: Bhim, however, angrily disagreed with them and recommended killing this culprit, who had murdered sleeping children for no purpose and for neither his nor his master's interest. तो भीम को अभी भी क्रोध आ रहा था, क्योंकि भीम को तो बहुत क्रोध आता था। भीम ने ही 100 कौरवों को सभी को मारा था। भीम ने प्रण लिया था कि मैं सभी को मारूंगा। और जिस प्रकार से इसने अश्वत्थामा ने अपने कृत्य किए, वो तो किसी ब्राह्मण के कहलाने लायक नहीं थे कि ब्राह्मण के कृत्य हो सकते, वो किसी राक्षस से भी घिनौने कृत्य किए थे। तो भीम को अभी भी क्रोध आ रहा था और उन्होंने कहा कि इसको तो मारना चाहिए। तो अभी डिसएग्रीमेंट जो है, भक्तों के बीच में ही डिसएग्रीमेंट हो गया। डिवोटीज, ऑल आर डिवोटीज एंड डिवोटीज के बीच में डिसएग्रीमेंट हो गया। तो ऐसा अक्सर होता रहता है जब भी हम मैनेजमेंट करते हैं इस्कॉन में। तो आप देखेंगे कई बार भक्तों के बीच में डिसएग्रीमेंट होता है। तो ऐसे डिसएग्रीमेंट को हम एक्चुअली, कुछ भी हमारे जीवन में जो होता है उसको हम शास्त्रों की नीति के अनुसार ही हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जब भी हमारे जीवन में कुछ होता है, मान लीजिए आपके जीवन में कुछ समस्या आती है, तुरंत आपको सोचना चाहिए कि ऐसा किस भक्त के जीवन में समस्या आई थी जिस प्रकार मेरे जीवन में आई। जैसे किसी को बहुत बड़ा लॉस होता है, मान लीजिए फाइनेंशियल लॉस होता है, तो वो याद कर सकता है अवंती ब्राह्मण का जो केस था, कि अवंती ब्राह्मण ने क्या किया था उस समय, और शिला प्रभुपाद जी ने क्या किया था उस समय। तो इस प्रकार से जब भी हमारे जीवन में कोई समस्या आती है, मैनेजमेंट में कोई समस्या आती है, हमें अपने धर्मशास्त्र इसीलिए बने हैं, इसीलिए लिखे गए हैं, ताकि हमारे जीवन में जब समस्या है हम उनसे रेफरेंस लेके उनमें जो पालन किया गया था उन शास्त्रों में, वो हम पालन कर सके। तो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग है कि डिवोटीज के बीच में डिसएग्रीमेंट्स है। तो आप जब मैनेजमेंट करेंगे, कोई यात्रा अरेंज करते हैं या मंदिर में कुछ मैनेजमेंट करते हैं, कुछ सेवा करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं या फिर प्रीचिंग कर रहे हैं, तो आपको देखेंगे, आप कई बार देखेंगे भक्तों के बीच में भी डिसएग्रीमेंट हो जाता है, वो पॉजिटिव कार्य के लिए, क्योंकि दोनों ही सेवा करना चाहते हैं और दोनों का ही उद्देश्य है कि हम भगवान की सेवा अच्छे तरीके से करें। और अच्छे तरीके में कौन सा तरीका अच्छा है, ये दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट हो जाता है, दो पक्षों के बीच में, तब कैसी स्थिति होती है और क्या करते हैं। तो आइए ये देखते हैं, बहुत सुंदर ये एपिसोड चल रहा है। यस, somebody else? अरविंद पांडे, you want to read? निशम्य भीम गदितं द्रौपदास्ते चतुर्भुजः आलोक्य वदनं कक्युरिदामाह शस्त्रिवः. Translation: Chaturbhuja, the four-armed one, or the personality of Godhead, after hearing the word of Bhima, Draupadi, and others, saw the face of his dear friends of Arjuna, and he began to speak as if smiling. Purport: Lord Krishna had two arms, and why he is designated as a four-armed is explained by Sridhar Swami. Both Bhima and Draupadi held opposite views about killing Aswasthama. Bhima wanted him to be immediately killed, whereas Draupadi wanted to save him. We can imagine Bhima ready to kill while Draupadi is obstructing him, and in order to prevent both of them, the Lord discovered another two arms. Originally, the primeval Lord Krishna displays only two arms, but in his Narayana feature he exhibits four. In his Narayana feature, he resides with his devotees in the Vaikuntha planets, while in his original Sri Krishna feature, he resides in Krishnaloka planet far above the Vaikuntha planets in the spiritual sky. Therefore, if Sri Krishna is called Chaturbhuja, there is no contradiction. If need to be if need be, he can display hundreds of arms, as he exhibited in his Vishwarupa shown to Arjuna. Therefore, one who can display hundreds and thousands of arms can also manifest four whenever needed. When Arjuna was perplexed about what to do with Aswasthama, Lord Krishna, as the very dear friend of Arjuna, voluntarily took up the matter just to make the solution, and he was smiling too. तो यहाँ पर श्रीधर स्वामी की कमेंट्री से अभी यहाँ पे जो भगवान है वो रिजॉल्व करने के लिए, जो डिसएग्रीमेंट हुआ है, डिस्प्यूट हुआ है, उसको रिजॉल्व करने के लिए आए हैं। भगवान को यहाँ पर भगवान कुछ बोल रहे हैं, एंड भगवान को चतुर्भुज
कहकर भगवान को संबोधित किया गया है, संबोधित किया गया है। तो ये आश्चर्य की बात है, क्योंकि भगवान तो द्विभुज रूप में ही रहते हैं, अपनी अपनी भौम लीला में वो द्विभुज रूप में रहते हैं। तो श्रीधर स्वामी का जो कमेंट्री है वहां से शिल प्रभुपाद ने लिया है। तो भीम और द्रौपदी दोनों के अलग अलग यहाँ पर विचार थे। तो भीम मारना चाहते थे, द्रौपदी बचाना चाहती थी। और इसमें क्या है, एक्चुअली आप देखेंगे ना, पहले भीम और द्रौपदी एकदम साथ थे। जब महाभारत युद्ध से पहले की बात है, और दोनों ही मिलके युधिष्ठिर महाराज को बहुत दुत्कारते थे, बीच बीच में बहुत धिक्कारते थे कि आप क्या करते हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो। द्रौपदी तो बहुत डांटती थी, तो सभी पांडवों को द्रौपदी बहुत डांटती थी, क्योंकि द्रौपदी का जो अपमान हुआ था सभा में, ऐसा किसी स्त्री का आज तक ऐसा नहीं हुआ था अपमान। और उसके बाद भीम भी उनका सपोर्ट करते थे, और भीम कहते थे कि भैया जो है अब मुझे आदेश नहीं देते, नहीं तो मैं मार दूं इन सब लोगों को। हम क्यों इतना धर्म का पालन कर रहे हैं जब ये लोग धर्म का पालन नहीं करते। तो भीम के मन में हमेशा क्रोध था। लेकिन यहाँ पर भीम और द्रौपदी के बीच में भी यहाँ पर विवाद हो गया, क्योंकि भीम और द्रौपदी के व्यू दोनों के अलग अलग हो गए। अ, तो भगवान ने यहाँ चार भुजाएं यहाँ पर प्रदर्शित किया। भगवान को चतुर्भुज यहाँ पर कहा गया कि टू प्रिवेंट बोथ ऑफ देम, दोनों को रोकने के लिए, क्योंकि दोनों के बीच में कि भीमा रेडी टू किल वाइल द्रौपदी इज ऑब्स्ट्रक्टिंग हिम। तो अभी दोनों को रोकने के लिए भगवान ने चार भुजाएं अपनी प्रदर्शित की हैं। तो ये सिंबॉलिकली ये ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो भगवान का जो नारायणा फीचर है, भगवान नारायण जब जब वैकुंठ लोक में होते हैं तो भगवान चतुर्भुज रूप में होते हैं, और कृष्ण रूप में वो दो ही हाथों में होते हैं। तो वैकुंठ लोक से कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन वेरी फार एंड अबाउट, बहुत ऊपर है। तो आपने देखा होगा एक जो ब्रह्मांड का चित्र है इस्कॉन में, बहुत काफी फेमस चित्र है, उसमें बताया गया है कि किस प्रकार से लोक, एक एक लोक दिखाए गए हैं। आप उस पे कृष्ण, आई थिंक भगवद गीता, अन्य किताबों में भी वो चित्र है। तो तो भगवान को चतुर्भुज कहना यहाँ पर कोई गलत नहीं है। भगवान जब चाहे तब अपनी हजार भुजाएं भी कर सकते हैं। विश्व रूप में उन्होंने हजारों लाखों भुजाएं दिखाई थी। तो तो इसलिए अब भगवान आए हैं, जब भी डिसएग्रीमेंट होता है तो फिर किसी बड़े को आना पड़ता है। तो भगवान अभी आए हैं उस डिसएग्रीमेंट को समाप्त करने के लिए। तो हम नेक्स्ट कल पढ़ेंगे कि भगवान किस प्रकार से डिसएग्रीमेंट को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, समवेत गौ भक्त वृंद की जय।